1 मिनट। बट ये वाला वो नहीं है फिर भी। जी सर। Sir, I have tell my hobbies. नहीं My नहीं, hobbies are डिड यू इंट्रोड्यूस लाइक दिस लास्ट टाइम ऑल्सो? yes, sir, something like this only. बट थोड़ा बात करना है ना, आपने इतना कम बात करते हैं इस बार। हाउ विल आई फॉर्म गुड इम्प्रेशन अबाउट यू? Okay, sir. थोड़ा you should tell about your native place, the degree you studied. Of course, you have not studied much. You have done only BSc, then Yes, your sir. plus two marks. And then you should tell about your working in Reserve Bank of India, in which Yes, place and in which capacity, what is the role you are doing there. It may not be very important, but still you should try to tell something important about it. And then you should tell about your strengths and why, I mean, like your strengths, achievements, and what way do you consider it suitable for you for ECGC post? okay, sir. So, because you are already working as a what is the grade assistant, no? Attendant, attendant. Attendant, not even assistant, attendant. आपको अटेंडेंट से हम कैसे पीओ बनाएगा, इसका बारे में आपने अच्छा बात बताना है इधर। डोंट यू थिंक सो? लास्ट Yes, sir. टाइम last time I was very happy about your interview. I don't know, I must have given good opinion about you. But इस बार जब आपने बात करते हैं तो खोल के बात नहीं करते हैं, you are answering with a view not to speak out. Okay, sir. Now try again. Okay, sir. My name is Shivan Srivastava. I have completed my graduation BSc College in 2022 from Jagran College of Arts, Science and Commerce. I am currently living in Kanpur, Uttar Pradesh. This is my native place. I am currently working in Reserve Bank of India as office attendant since 2022. Uh, the famous exported item from Kanpur is leather, and my strengths are um, problem solver. And I can analyze the situation critically and do the tough task and break it into small manageable parts, and can do data analytics. My weakness are sometimes I try to be do the work to the perfection that can delay the time in doing the work. And mm, yes, sir, that it is. What is your full name? Sir Shivan Srivastava. Arun Kumar, you are there online? Yes sir, I am. Yeah, कोई बात नहीं. Actually, this is not what I wanted to show you. Mine was, I actually had in mind another ECGC वाला, जिसमें ये जी लड़का पूरा हिंदी में बात करते थे, और ये जी वाला सर। पूरा वो, आई थिंक ही इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज नाउ जी वर्किंग सर। इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो बिल्कुल बढ़िया बात करेगा, इसी वजह से तो हमने सोचा 1 मिनट, लेट मी सी वेदर जी इट सर। इज दैट वन। 1 मिनट करो ना। Do you know the US solar company's इट्स वर्थ nasty little वेटिंग। secret? It turns out if you live in California, they have to give you solar panels for Mr. Mohit Jaiswal, this is your second mock with me. Yeah, this is the Yes. one. Your interview is going to be on which date? Sir, my interview is on 18 Feb in Delhi, ECGC headquarter, East Kidwai Nagar. Oh, good. Um, Mr. Mohit Jaiswal, आपका बारे में, you are going to use English or Hindi? सर हिंदी में बात करूंगा। हिंदी में, अच्छा, आपका बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम मोहित कुमार जायसवाल है। मैं मूलतः दौसा राजस्थान का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से पूर्ण की है। वर्तमान में मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हूँ, जहां मैं अपने कार्यालय के दैनिक कार्यों को करने के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जॉस का इस्तेमाल करता हूँ। सर इट्स अबाउट मी, माय फादर इज अ डॉक्टर और माय मदर इज होम मेकर।
What do you know about ECGC? सर इस So that much will do. Yeah, and जी सर। that much will do. Now let us go for our recording. For example, you are now अरुण कुमार, आपका जी बारे में आप हिंदी में हमको बता दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा का निवासी हूँ। मैंने अपनी LLB डिग्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से पूर्ण की है 2019 में, और मैंने उसके बाद मास्टर्स डिग्री 2024 में कंप्लीट की है। और मैं अभी जूनियर एसोसिएट काम कर रहा हूँ जिला जिला डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में। मेरे मेरे घर में 5 सदस्य हैं। मेरे पिताजी, माताजी और मेरे बड़े भाई और भाभी जी और मैं। क्या अरुण कुमार, आप अभी काम कर रहे हैं? तब तो आपको और भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको क्यों कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? आपने तो एमएल कर दिया ना क्या? एमएल ना जी एलएलबी? सर। एमएल कर दिया। LL। जी जी अरे जी मास्टर्स। अरे अरे बाबा, इतना बड़ा परीक्षा पढ़ के आपको क्यों इतना कॉम्प्लेक्स होता है? आप अभी जिला परिषद में क्या काम करते हैं आप? जी सर। बोलो। सर आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। नो नो, आपको क्या काम कर रहे हैं? व्हाट इज द डिजिग्नेशन आपको है? सर आई एम वर्किंग एज अ जूनियर एसोसिएट एंड आई एम असिस्टिंग माय सीनियर एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राइट नाउ। अच्छा, इज इट अ गवर्नमेंट जॉब और नो नो। प्राइवेट? नो सर। प्राइवेट जॉब? नो सर, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ। जी जी ये जी वाला जी आप बोलने से तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। जिस जी समय जी पर आपने बोलना है आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अंडर सीनियर सो एंड सो, यस सर यस सर। लेकिन आपने जो बोला उसको सुन के हमको मन में लगा आपने जिला परिषद कोर्ट में क्लर्क काम करते हैं और जी कोई जी दूसरा काम करते हैं, ऐसा समझ रही। इसीलिए जी जी आपने हमको क्लियरली बताना है यू आर प्रैक्टिसिंग। ऐसा में भी प्रैक्टिसिंग वाला आने तो ज्यादा नहीं है, खाली पच्चीस जी परसेंट वाला प्रैक्टिस वाला है। जिनको प्रैक्टिस वाला को चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन होने के लिए। जी। इसलिए आप उसको प्लेनली बोलना है, क्लियरली। ठीक है सर। ओके सर। अच्छा जी, आपको लॉ अभी कितना साल से काम करते हैं इधर? सर एक्चुअली मैंने 2019 में अपनी LLB डिग्री कंप्लीट की, और उसके बाद मैं एनरोलमेंट के बाद मैं आई एम नॉट गोइंग रेगुलर बेसिस इन द कोर्ट, बट हम्म। तो सर ये तकरीबन 5 साल से। No, no, but you are बट telling a lie. I can easily see you are telling यस a सर lie. यस सर यस सर। Yes, sir. आई वाज आ, प्रिपेयरिंग आई। या आई नो, आप पूरा पूरा लाई बोलते हैं, ये सबको समझ गया। क्यों? आर यू हैविंग सर्टिफिकेट फॉर हैविंग सर्व्ड एज जूनियर अंडर दिस मैन? यस सर आई हैव। कितना साल, कितना डेट से आपको सर्टिफिकेट है? सर मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रहा वहां पे। मैं 5 साल से है सर एक्चुअली। बट ऐसा में भी अब आंसर देने से हम कैसे आपको प्रेफरेंस मार्क देगा? आप जी बोलते हैं हमने तो लॉ पढ़ा है, लेकिन हम कोर्ट को रेगुलरली जाते नहीं। इनको हम 10 से 2 मार्क भी नहीं देगा। जी। वाई शुड आई सेलेक्ट यू? आप जाओ, कोई दूसरा काम के लिए जाओ। आप क्यों लॉयर काम के लिए आ रहे हैं? सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, उसके लिए मैं तभी बोला मैंने ऐसा कि मैं नहीं नहीं, रेगुलर नहीं जा पाता। और LLM किया मैंने बीच में उस वजह नो से। नो, बट आपने एटलीस्ट हाँ सम यू हैव टू टेल कोजेंटली
हमने 6 जी महीना जी काम किया, एक साल जी काम किया, ऐसा अभी जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाएगा आपको, क्या क्या काम आप कोर्ट में किया है, ये पूछेगा। आप तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज दे कैन इजीली मेक आउट वेदर यू आर जी टेलिंग द सच और नॉट। आपको कुछ जी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, नहीं होने से बोलो मत। यू से यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, बस। जी सर। आप क्यों झूठ बोलते हैं? हेलो, if ठीक you है सर। have really worked as a junior under some advocate at least for 1 year, then you can tell me. Otherwise, accept you are working, sir, you are preparing for exams. Which ओके one would सर। you like to choose now? सर विदाउट वर्किंग। Acha, that means you have been preparing for exams. यस सर। क्या क्या एग्जाम्स आपने लिखा है? सर मैंने IBPS SO, RRB एंड बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम्स और Mhm. some other exams like Coal India, Have Legal you written Manager. insurance exams? नो सर। क्यों? क्यों नहीं लिखता? वो भी सेम काम है ना। उधर भी जी लॉ का बोलते हैं, इधर भी लॉ को बोलते हैं। आप क्यों अप्लाई नहीं किया? पैसा नहीं, इसी वजह से नहीं अप्लाई किया ना क्या? सर मैं उसके बारे में अवेयर नहीं था इस वजह से। वेरी गुड, दैट्स गुड, दिस इज नाइस। नाउ वी आर कमिंग टू लॉ। यस सर। व्हाई डिड यू चूज लॉ, बाबा? सर दिस इज माय फादर ड्रीम टू आई ही वांट टू सी मी एज अ लॉयर। अच्छा, व्हाट इज योर फादर? इज ही अलाइव? यस सर ही इज अलाइव राइट नाउ। व्हाट इज ही डूइंग? सर ही इज अ ट्रक ड्राइवर। अच्छा, वेरी जी गुड। सर। कितना कष्ट लिया होगा टू मेक जी यू सर। ऑल पीपल कम अप इन लाइफ। एक्सलेंट। यस सर। अच्छा जी, आप हमको इंडिया में लीगल पोजीशन का बारे में बात कर लो। इंडिया में कुछ लॉ है? क्या लॉ है? क्या कोर्ट है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट में क्या है? इधर में लॉयर का काम क्या है? इसका बारे में बात कर लो पूरा। यू कैन इवन टॉक फॉर 5 मिनट्स। ओके सर। सर इंडिया में इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीन तरह के कोर्ट हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो गवर्न करता है ऑल ऑफ द एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस। और सर दो तरह के यहाँ पे केसेस होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, इंडिया में। और सिविल जो केसेस होते हैं उनको सिविल प्रोसीजर कोड गवर्न करता है, और क्रिमिनल केसेस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 1 जुलाई से गवर्न करी। उससे पहले CRPC गवर्न करता था। और सर इसके साथ साथ क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि हमारे यहाँ काम करते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, और अदर लाइक नेशनल कमीशंस हैं। और सर बैंक्स में सर DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं। और जो सर एक लॉयर या एडवोकेट हैं सर, आफ्टर ही गॉट द लाइसेंस और सक्सीड, और ए AIB का एग्जाम के बाद सर ही कैन प्रैक्टिस इन द कोर्ट, और वो कोई भी केस लड़ सकता है, मतलब कोर्ट में जाकर डिफेंड कर सकता है एक्यूज को, या फिर। ठीक है सर, ये सब है। आर यू सेटिस्फाइड विथ योर आंसर? नो सर। ये क्वेश्चन 90% पूछेगा नहीं है। ये तो सिल्ली क्वेश्चन है। ये तो यस बच्चा सर। का क्वेश्चन है, ये तो पूछना ही नहीं है। फिर भी यस सर। हम आपको पूछ लिया। जी सर। सो इसको थोड़ा सोच के बढ़िया से आंसर
देना है। हम जी सर। ये आंसर आप जो बोला है वो सही नहीं है। अभी हम इसका वजह से हमारा चैट जीपीटी से मंगा, वो सही है नहीं सही है हमको पता नहीं है। फिर भी इसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, जो इसलिए हमको मन में थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा इंफॉर्मेशन रहेगा। इसलिए कैन यू रीड दिस इन इंडिया? प्लीज रीड। आर यू सीइंग ऑन सर स्क्रीन? यस सर। हाँ, In रीड India, रीड। the judicial system is structured for ensuring, sorry, structured to ensure that the rule of law is upheld, and it follows a well-defined process for the establishment of law courts at different levels. ये Here's पॉइंट an आपने over. अच्छा, ये पॉइंट आपने बताने से आपका ऊपर में उनका रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। Yes, वो sir. he will be convinced, अरे बाबा, this man is respecting law, he is believing our law। पढ़ो। Yes, sir. पढ़ो पढ़ो। Here, here's an overview of how courts are set up in India. First one is hierarchy of courts in India. The Indian judiciary is structured hierarchically and it is divided into the following levels. First one is Supreme Court of India. The Supreme Court is the apex court in India and it is located in New Delhi. It was established by Article 124 of the Indian Constitution in 1950. It has the authority to hear appeals against judgments from high courts, cases involving constitutional issues, and disputes between states or between the center and states. The Chief Justice of India heads the Supreme Court. Yeah, 1 minute. Next one, high courts। Second one is the high courts. High courts are the highest courts in the states and union territories of India. They have jurisdiction over their respective states or territories. High courts have the authority to hear appeals from lower courts, including civil, criminal, and constitutional cases. The creation of high courts is governed by Article 214 of the Indian Constitution. Third one are district courts. District courts are the courts at the district level and they are divided into civil and criminal courts. They have jurisdiction over cases that do not fall under the purview of higher courts like the High Court or Supreme Court. The district court is headed by a district judge. And fourth one are subordinate courts. These are the courts under district courts and include courts like magistrate courts, civil courts, family courts, etc. They handle a wide range of cases, including petty crimes, family disputes, and civil matters. The judges here are appointed by the state government. Procedure for setting up courts. The establishment of courts in India follows a well-established legal and procedural framework with different steps involved. Like they are ये पढ़ना है सर सब। पूरा पढ़ो ना, इसके लिए तो आया जी तुम। जी जी जी। Legislative framework, the जी creation जी of a new court, whether a district court or high court or special court, is usually done through a statutory law passed by the Parliament of India or state legislatures. The law specifies the jurisdiction, powers, and functions of new courts. Appointment of judges. Judges to these courts are appointed through various procedures depending on the court. For example, Supreme Court judges are appointed by the President of India after consultation with the Chief Justice of India and other senior judges. This also, I think it is a general answer only. I think there are यस some more procedures like there is a collegium and all that. इसका बारे यस में सर chat GPT ने clearly नहीं दिया. High Court judges are appointed by the President following the recommendation of Chief Justice.
Lower court judges are usually appointed by the state governments through a formal recruitment process which can involve competitive exams, notification, and establishments. Once the legal framework is in place and the appointments are made, a notification is issued by the appropriate authorities to announce the formation of courts. For high courts, creation and establishment are often notified by central government and the guidance of the President of India. Infrastructure setup. In parallel with the judicial appointments, infrastructure required for the court, buildings, equipment, etc., established often by the respective state or central government. District courts are typically managed by state governments, whereas the infrastructure for the Supreme Court and High Courts is the jurisdiction of central government. Legal framework for specialized courts such as family courts or commercial courts, specific laws, rules may be passed to define their jurisdiction procedures. For instance, Family Courts Act governs the establishment of family courts. Commercial court or commercial division or commercial appellate high courts, and even this I am not satisfied whether it is correct. Then financial जी सर। approvals. Setting up courts requires financial allocation, administrative setup, special courts. Conclusion. The process of setting up a law courts in India is a methodical legal backing from the constitution and various laws. It involves legislative action, judicial appointments, infrastructure, development, and financial backing. The courts at different levels serve to provide justice in a structured manner from the Supreme Court down to district courts. Even this answer is incomplete. Can you tell यस me सर। which are the courts not mentioned in this? Which are the big courts or big activities that are being done nowadays, not being included in this one? सर जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं जो, जैसे पोक्सो एक्ट के अंदर। Okay, good. Next. और सर हम्म, मेरा मन सर में 1 or 2 पॉइंट्स है, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं। जी जी जी। हाँ सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर कौन सी अरे हैं। बाबा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सर वो मैंने पहले बोला था ना, डीआरटी और डीआरएटी बैंकिंग, उसको अच्छा देख बोला, रिकवरी कैसे वेरी की। गुड, जी सर, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम बोला था। जी जी। अच्छा, देन सरफेसी एक्ट, जी सर। उसको पॉइंट बोलना है। IBC को बोलना है। जी सर। इंसॉल्वेंसी एनी हाउ डजंट मैटर। ये चैट जीपीटी का आंसर उतना ठीक नहीं है, उनको खाली 6 out of 10 मिलेगा। यस सर। Yeah, now please tell me about DRT limit and procedure. सर डीआरटी जो हैं ये 1993 जो एक्ट है उसके अंडर एस्टेब्लिश की गई हैं। और इसमें जो रिकवरी प्रोसीजर है, लाइक एनपीएज और बैड लोन्स, वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे डीआरटी के अंडर जाकर रिकवर कर सकते हैं अगेंस्ट द बोरोवर। इतना बोलने से नहीं चलेगा, यस सर। आपने हमको बोलना है दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट। यहाँ ओके। पर आपको 20 lakhs, सॉरी, अबाउट 20 lakhs केसेस होने से फाइल कर सकते हैं। पहले इसमें हम्म। अप्लाई करेगा, बाद डिक्री लेके उसको एग्जीक्यूट करवाना है। इधर DRT के लिए एक अपलेट कोर्ट भी है, जहां द डिफेंडेंट्स दे कैन गो एंड टेक द objection and raise objection. A point something like that you should speak. I think legally I have not told you correctly, थोड़ा clearly बोलना है। Okay. यस सर, आई विल रीड अबाउट इट सर। And not only that, आपने ये बात बताना है, the minimum court fee is this much, maximum is this much, like that, ये सब point आपने बताना है। And how यस many सर। DRTs are there now in our country? How many appellate tribunals are there in our country? ये इसका छोड़ के हमारा आपका हरियाणा का पास में which is the DRT court where the court cases are being filed, ये सब clearly
आपने बात करना है. यस सर, And यस why सर। the DRT has been established? DRT ने establish हुआ क्योंकि हाई कोर्ट में केस फाइल करने का बाद में रिकवरी करने के लिए बहुत समय होता था. उसको स्पीड अप करवाने के लिए तो ये DRT प्रोसीजर लिया था. लेकिन फिर देखा इसमें भी आपको जल्दी जल्दी केसेस नहीं जाता है, रिकवरी नहीं होता है. इसी वजह से आपको सरफेसी एक्ट 2002 में ब्रिंग किया है. ये सब क्लियरली एज अ लॉयर यू हैव टू स्पीक. ओके सर। Are you satisfied with your performance? नॉट रियली सर। आई थॉट आई वुड स्पीक इन इंग्लिश ऑन द फर्स्ट गो। No, no, if you want to speak in English, I have no objection. But then हिंदी में बात करना तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए. The content आपको मन में नहीं है. यही है प्रॉब्लम. You want to speak in English? Absolutely. No problem. Please talk to me about simple mortgage and usufructuary mortgage. Simple mortgage. In this simple mortgage, there is no possession. Sorry, no possession given by the mortgager. Only the but mortgagee can recover that loan or money by selling that property. Only the interest is given under simple mortgage. And what was the second one, sir? Usufructuary. The usufructory mortgage is a mortgage where only the sorry, the possession is given under this under usufructory mortgage, and mortgagee can use the uh, things like rent uh, or other uh, things under usufructory mortgage, and they can recover that money or loan that See, provided to actually, the mortgagor. Yes, sir. what you are telling is what a 8th standard boy, 9th standard boy, or somebody in BA, BCom studying will tell. But you Yes, are a sir. lawyer. Whenever Yes, you sir. speak law, you must use the name of act, charge. Okay, sir. Like these factors, you should say under the Transfer of Property Act, year so and so, section number Yes, sir. 58 or so and so, mortgages are defined. मॉर्गेज में Yes, सिंपल मॉर्गेज क्या है, usufructory मॉर्गेज क्या है, ऐसा मैं भी बोल रहा है. हाउ डिड यू मैनेज दैट बैंक ऑफ इंडिया इंटरव्यू लास्ट टाइम? yes, sir. It was disaster actually. If you have been answering like this, it will be definitely disaster. Yes. I don't know why you are not come to me earlier. कब ज्वाइन किया मेरा ग्रुप में? सर मुझे कल ही आपके बारे में पता चला बाय फ्रेंड। बिल्कुल आपको प्रिपरेशन ठीक नहीं है. इन द लाइन इन विच यू शुड प्रोसीड. अरे भाई मेरा वीडियोस तो 3-4 साल से यूट्यूब पर है. 3-4 साल से है. 1 साल नहीं, 2 साल नहीं. यस सर। This time your preparation is very moderate. If you have scored very good marks in the written test, आपको मिल जाएगा. लेकिन आपको यस सर। कॉन्फिडेंस से बात करना हो. Hereafter you are going to speak confidently. Please tell me something that you know about consumer court type and limit. सर consumer courts are established for the rights for the consumers in India. There are three type of consumer courts: district consumer dispute redressal commission, and state consumer dispute redressal commission, and national consumer dispute redressal commission, which which are established under Consumer Protection Act 2019. And there are three, sorry, for the District Consumer Dispute Resolution Commission, there is up to 50 lakh rupees or property of can consumer courts, sorry, consumers can uh, go in for complaint in the district To commission, 50 lakhs or and 50,000? up to 50 lakhs, sir, district commission. Okay, okay.
and under Anyhow, doesn't state. matter. Sufficient. Please tell me Yes, sir. something about RTI. The RTI is a Right to Information Act 2005, which is established for the right to information, like citizens of India. Only the citizens of India can apply for the right to information in the public institutions. And sir, the procedure of the RTI is that citizens can apply in written or orally, but Orally. lastly it will. No, Orally. sir. Yes, sir. In the I read that if orally they can, but the जो सर ऑफिसर होगा वो उसको रिटर्न में ही लेगा, मतलब इन दी एंड, Hmm. ऐसा कुछ पड़ा था सर। How much और is सर इस the stamp duty to be paid? सर ये सब आई पढ़ना थिंक है सर। आपको, प्रिपेयर होना है. You are not तैयार. You are not ready यस with सर। that. Please tell me what यस is सर। a promissory note. अरे सर भाई, प्रोमिसरी did नोट इज did did you come across these questions? Yes or no? यस सर, आई हैड। Then what did you do with them? सर हेलो. प्रैक्टिस किया थोड़ा। यस सर, प्रैक्टिस किया थोड़ा और पढ़ा उनके बारे में। अच्छा ठीक है, तब तो बढ़िया है. गुड. वेरी गुड. आई एम हैप्पी. प्रॉमिसरी नोट का बारे में कुछ बात बोलो. सर प्रॉमिसरी नोट का प्रोमिसरी स्टैम्प नोट, ड्यूटी कितना है? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट द वन स्टैम्प ड्यूटी। रुपीज 1 रुपी रेवेन्यू स्टैम्प. ओके सर, थैंक यू। एंड पहले आपको ये भी नहीं जानते हैं व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन किधर, किस एक्ट पर आता है? सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोवाइड किया गया वेरी है, गुड. सेक्शन कैन यू डिफाइन सेक्शन फोर। प्रॉमिसरी नोट? यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। सर सेक्शन 4 के अंदर प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 1882। और सर प्रोमिसरी नोट इज एक 1881. 1881. 1881, सॉरी सर। और सर प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, जो कि रिटर्न, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। और सर इसमें टू पार्टीज होती हैं, मेकर एंड पेई। Promisor, promisee. Okay. Maker and pay, that's okay. Doesn't matter. But the proper way is promisor, promisee. It doesn't matter. Okay. Good. You know it. Thank you. Now, are MOUs enforceable? सर इफ एमयू मीन सर मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, और सर ये Memorandum of undertaking, nahi, एनफोर्सेबल understanding. अंडरस्टैंडिंग, सॉरी सर। एमयू सर अगर लीगली जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है दो पार्टीज के बीच में, अगर उसमें इंस्ट्रक्शंस जो लिखी गई हैं वो, अगर वो लीगली एनफोर्सेबल होगा तो सर आई थिंक इट इज रजिस्टेबल। Normally, no. नॉर्मली नहीं होता, जनरली सर नहीं होता, हाँ जी। यस सर। What are the remedies available for recovery of NPA? सर there's some type of procedure like banks or financial institution can go into the SARFAESI Act, and Where they there is a can recover mortgaged property, we can go for SARFAESI surface. Act. If there is no Yes, sir. mortgage property or movable property, then we have to go through High Court or District Court, take a decree, and then get the execution of decree. Yes, And sir. in the case of big companies, say the insolvency proceedings can be started and recoveries made. Yes, sir. Like What? sir, under अच्छा, Order now 37. वो बात छोड़ो, वो सब जरूरत नहीं है अभी. हाँ जी, अमेरिका इंडिया इमिग्रेंट्स का बारे में क्या बात चल रहा है? लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? सर लेटेस्ट न्यूज सर जो मैंने पढ़ा था या देखा था, उसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडिया से अमेरिका गए हुए थे,
ठीक है सर। वो लाइक विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स दे आर देयर इन यूएसए, तो उनको हथकड़ी और मतलब बांध कर, है ना सर, वो वहां से How प्लेन many में people have मतलब been sent back? सर आई थिंक एज फार एज आई कैन रिमेम्बर देयर इज 150, अराउंड 100, 150 सर। 104, ओके सर। 104 पहले। और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? आज सर आई सुबह एम नॉट। सुबह, आज सुबह 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 आपको मिलता है, और कल का सुबह मिलता है, अमृतसर पर 119 आदमी को डाल दिया। फिर यस सर। सेकंड प्लेन से, उसको पढ़ा है? नो सर, अभी नहीं पढ़ा सर। उतना तक आपने अपडेट करके जाना है इंटरव्यू जाने के पर। आज जी का जी जी। कागज पूरा पढ़ना है। आई एम शेयरिंग विथ यू। हिंदी कागज भी आपको देता है, अंग्रेजी कागज भी देता है, पढ़ के हाँ जी। जाना। ठीक जी है? सर, श्योर सर। श्योर सर, श्योर। बेस्ट विशेस। गॉड ब्लेस यू। आई एम सॉरी अरुण कुमार फॉर बीइंग harsh towards you. इट्स ओके सर। The आई एम रियली सॉरी intention फॉर। is you have been studying for 24 years now. You have not been having proper guidance how to prepare for the interviews, how to develop confidence, how to go ahead with speaking to people. ये सब थोड़ा स्पोकन इंग्लिश क्लास भी लेने से अच्छा होता है, और हाँ एटलीस्ट जी। स्पोकन हिंदी क्लासेस भी लेने से बढ़िया होता है आपको। हो सकता है यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन, बट हमको विदाउट सीइंग यू लगता है हियर इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक बॉय हु इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस। ऐसा समझ रहे हैं, मे बी रॉन्ग, बट आई विश यू मस्ट गेट सक्सेस। I am happy they gave you at least 8 marks last time. 8 marks is यस सर। not a fail mark, it is a pass mark. बट यस सर। इतना कम मार्क दिया तो आप बिल्कुल कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं गया। अभी तो यस आपको सर। कुछ हमने उपाय शो कर दिया। इसको पकड़ के आप प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो, वीडियोस एक दो देखो, पॉइंट्स नोट कर लो, गो एज अ जी सर। कॉन्फिडेंट पर्सन। अरे भाई, आप ये जी सब सर। पढ़ के जाने से तो वो लोग पूछेगा पार्लियामेंट में कितना सीट है, राज्यसभा में कितना सीट है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऐसा मपी कुछ सिल्ली क्वेश्चंस पूछेगा। ये जनरल नॉलेज भी आपने आंसर देना है। हु इज द लॉ मिनिस्टर इन इंडिया? Who is the Haryana law minister? Who is the chief minister of Haryana? Who is the governor of Haryana? अरे बाबा, ऐसा में भी बहुत कुछ क्वेश्चन आएगा, ये सबको हाँ जी। आपको आंसर देना पड़ता है। I will हाँ जी see सर। you tomorrow again and check up how you are answering. I only wish you the best of luck. भगवान का कृपा आपका पास होना चाहिए, इसी वजह से आपने इधर आया। आई विश यू सक्सेस, बट इस बार नहीं होगा तो ज्यादा जी। सोचना मत। प्रिपरेशन फॉर लॉ एंट्रेंस ऑल्सो आपने हाँ जी बिल्कुल बढ़िया बुक्स लेके पढ़ना है। क्या बुक लेके पढ़ा है आपने? सर, मैंने बेर एक्ट से तैयारी की है। इसमें तो नहीं होगा ना आपको। लॉ लॉ का वजह से बहुत सा बुक है, किरण पब्लिकेशन और दूसरा वगैरह वगैरह कंपनीज का बुक भी होता है। वो सब हाँ क्यों जी लेके नहीं पढ़ा है? सर, आई थिंक अमेजोन अभी डॉट तक। इन अमेजोन डॉट इन में जाने से, अमेजोन डॉट इन पर जाओ, उधर में जाके बैंक लॉ ऑफिसर बुक्स ऐसा डालने से आपको मिल जाएगा। मिल गया। जी सर। आप जानते हैं नहीं जानते? जानता हूँ सर मैं। राजभाषा अधिकारी, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, IBPS SO law officer, Adda 247, जी 239 rupees only. Then हाँ। industrial relations, labor laws, वो भी पढ़ना है। Then ओके। IBPS law officer prelims, I think it is some other total 3 books। ये किसने? अड्डा only। ये सब क्यों नहीं पढ़ता है आप बोलो हमको। जी सर, पढ़ूंगा सर अब।
ये सब पेपर बैक है, अदरवाइज ये अड्डा, ये इफ इट इज पीडीएफ हमने तो खरीद के आपको दे देता है, लेकिन ये सब पीडीएफ में कुछ बुक्स ऐसा मिलता है, बोलो। पीडीएफ में सर नहीं सर, वो हम मतलब इंटरनेट से डाउनलोड हो जाती हैं कुछ फ्री पीडीएफ हैं जैसे, बट अच्छा, उसके अलावा तो जी। वो सफिशिएंट नहीं है, बहुत जी कुछ जी पढ़ना है जी। अरे बाबा देखो, जी सर। और यू सीइंग ऑन द स्क्रीन नाउ बुक्स? यस नो, सर। आर यू सीइंग द बुक्स आई एम शोइंग? नो सर, नो सर, नो। दे आर नो सर। ये बाबा देखो, कौन यस सर, आई कैन सी। सी आपको जरूरत नहीं, आपका पास बुक होगा, आप पढ़ लो। हाँ जी। एंड दिस वन, ओके सर। हम 15 साल पहले बुक लिखा था लॉ ऑफिसर एंट्रेंस के लिए, लेकिन वो अभी देने से तो वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा, उसमें तो आपको फर्क नहीं हाँ है। जी। आपने हाँ जी। बिल्कुल लेटेस्ट पब्लिकेशन पढ़ना है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। बेस्ट विशेस। आई एम प्रेइंग टू गॉड अरुण कुमार शुड बी सेलेक्टेड, थैंक यू सो मच सर। बट थोड़ा प्रिपेयर कर दीजिए बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आई हैव गिवन। यस सर, आई विल सर। फर्स्ट नोट कर लो, कागज में नोट कर लो। जी सर, बोलिए। नंबर 1, जॉब रोल ऑफ अ बैंक लॉ ऑफिसर। जॉब रोल जी बोलने सर। से भी ठीक है, ड्यूटीज बोलने से भी ठीक है। ओके सर। वाई बैंक लॉ ऑफिसर पोस्ट? जी सर। Why you are not going for practicing? जी सर। How you will be more suitable for our bank job? ठीक है सर। बाद में important provisions of note कर लो, negotiable instruments act, जी। contract act, हाँ जी। then companies act, यस सर। then partnership act, यस सर। industrial relations act, यस सर। then SURFACE act, ओके सर। IBC, insolvency। ओके सर। ये सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट एटलीस्ट आपको जानना जरूरी है। आपको समय ओके सर। नहीं है, इसीलिए क्या कीजिए, आपने चैट जीपीटी में और परप्लेक्सिटी में जाके खाली ये प्लीज टेल मी कंटेंट फॉर 2 pages on important provisions of SURFACE Act, procedure for implementing. Same ओके question सर। give for insolvency bankruptcy code. Please tell me the functioning of Supreme Court of India, 4 pages. Please give me ओके सर। pages write up on district court, on state say high courts. ऐसा मंगाइए। Then ठीक है सर। please tell me important provisions of Negotiable Instruments Act, Contract Act, ऐसा पूछ लीजिए। खाली वो 2 pages देगा, उसको मगअप करके जाओ। ओके सर। Best wishes. I wish you success. थैंक यू सो मच सर। You, थैंक यू सो मच सर you are a very फॉर योर good प्रीशियस candidate. You टाइम। are listening very nicely, but that alone will not do. आपने prepare करके जाना है। Well, I will prepare for last 2 days. Let's see Yeah. what happens. Best Yes, sir. wishes. God bless you. Thank you so much.